सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। जाग दुखा दिया मारिया, जिन्हें भी ट्रैफिक वाले साथी आ और जो ट्रैफिक लग रही है पिछले मोटरसाइकिल का सत्ता के जब जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, डब्बा डब्बा गूंजेगा जय भीम के नारों से, आजादी मुझे बात तो आजादी, जुल्म से दम दो आजादी, जुल्म से दम दो आजादी, हिंदू बात तो आजादी, हिंदू बात तो आजादी, मनुवाद तो आजादी, मनुवाद तो आजादी। मिशन न जानिया जिना अपना, मिशन न जानिया ओना सुख कदे ना माणिया, दुख वड वड खावे जाग हो। दलितां दे उत्ते जुल्म हो रहे हैं, दलित समाज का जो शोषण हो रहा, उस वाजों
ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧਿਸਟ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। मोदी मुस्लिम सिख ईसाई आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ RSS ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੋਵਾਦੀ ਦੇ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹੈਲੋ ਸਾਥੀਓ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5% ਲੋਕ 95% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਾਜ 85% ਸਮਾਜ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੈ मुर्दाबाद, 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 ਜਾਤੀਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ਜਾਤੀਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ਜਾਤੀਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर अम्बेडकर जी थोड़ी सोच ते डॉक्टर भीमराव जी थोड़ी सोच ते आजादी, जातिवाद तो आजादी, कॉमनवेल्थ तो आजादी, मुस्लिमवाद तो आजादी, हिंदूवाद तो आजादी, मनुवाद तो आजादी, मनुवाद तो आजादी, संघवाद तो आजादी, कॉमनवेल्थ तो मुर्दाबाद,
Come on, come on. Hey, lovers of freedom, come on. रोका है, आओ सबको मौका है, आओ सबको मौका है। धर्म वंश और लिंग का भेद नहीं है जय भीम, जय भीम, जय भीम। गूंगा पंडित पुरोहितों का भेद नहीं है जय भीम, भेद नहीं है जय भीम। संघर्ष की आवाज है, समता की आगाज है, सिनातन के बोलो यार, बोल 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 जय भीम। जंगल जमीन में सबकी मांगे हिस्सेदारी, यंत्र तंत्र और प्रजातंत्र में सबकी मांगे भागीदारी। सरोकार स्वीकार मांगे, उपकार नहीं अधिकार मांगे। होश में बोलो, जोश में बोलो, होश में बोलो, जोश में बोलो, होश में बोलो जय भीम। Listen to me, my brother. Hey, my sisters. Please listen to me. Say. From bottom of your heart. Say. Class, gender equality. Secular socialistic fraternity. Revolution, progress, uniformity. Hey, come on. With all these colors, we must be together. Really, Constitution is our nationalism. Come on. रंग सीमा के परे मूल्यों का ये देश है। तर्क हो लाखों मगर संविधान ही शेष है। संविधान की रक्षा में संघर्ष बोलना जय भीम। शिवाजी भगत सिंह।
ਮੁੜ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਧੋਖਾ देश है भारत तेरा देश है भारत तेरा देश है भारत तेरा गहरा ने पाया तेरा एक सवाल है मेरा क्यों नहीं एका करदा तू केड़ी गल्लों डरदा ਪੈਂਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਕੇ ਹੋਣ ਕਿਤਾ ਪੂਰੇ ਘਾਟੇ ਸੋਚਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਭੀਮ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈ ਕਹਿਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੂੰ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੀਰੋ ਮਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾ ਰਗੜਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਰਗੜਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਰਗੜਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਰਗੜਾ
संघवाद से सामंतवाद से पूंजीवाद से ब्राह्मणवाद से मनुवाद से आजादी मेरे वीरों में प्रोफेसर गुरनाम सिंह मुक्तसर इस प्रोग्राम का आयोजन किया है और पूरे पंजाब के लोगों को बुलाया गया। गर्मी की रुत होने करके गड्डियां ते मोटरसाइकिलों से प्रबंध किया और इसका मकसद जोड़ा है पूरे भारत के विच दलितों ते पछड़ियां ते आदिवासियों ते औरतों ते मुसलमानों ते सिखां ते और बहुत सारे गरीब हिंदू है उन्होंने बहुत अत्याचार और असी हर रोज़ देखते हैं सड़कों के उत्ते कद किसी को मार दिता जाता कोई पता नहीं लगता, कद किसी दी लत्तां तोड़ दी जांदियां कोई पता नहीं लगता, कद किसी के घर ढा दिते जाते हैं कोई पता नहीं लगता, कदों किसी को सड़क पर सिट के जिउंदे जला दिता जाता कोई पता नहीं लगता। पर असी सरकारां दीयां रिपोर्टां के मुताबिक जानते हैं कि जिन्ने लोग मारे जाते हैं कुट्टे जाते हैं उसमें 90% दलित होंगे हैं, 90% तो दलित होंगे हैं और बाकी लोग है जोड़े उन्होंने वारी भी लगती रहती लगातार और असी ये बर्दाश्त नहीं कर, ये बर्दाश्त करना काफ़ी औखा हो गया होना क्योंकि हज़ारों सालों तो असी ये तमाशा वेख रहे हैं और ये जो शरीर है ये समाउण वास्ते यह जा कुछ नहीं है, इनू सहन नहीं करता है शरीर रिएक्ट करता है प्रतिक्रम करता है। ये लोग जोड़े आए हैं पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और हाईली एजुकेटेड आदमी हैं और बढ़िया नौकरियां उत्ते लगे हुए हैं और दूसरे आम आदमी हैं और ये साधारण तौर पर नहीं आए, इन्हों के अंदर सीने च दर्द है पीड़ अपने समाज की और जो असी देखते हैं रोज़ टीवी पर देखते हैं सोशल मीडिया पर देखते हैं या साढ़े को जो भी खबर पहुँचती है तो पूरे देश के विच जिमें सानू जलाया जाता, जिमें सानू मारिया जाता है, जिमें कुटिया जाता है, जिमें घर च वड़ के आदमी नू मारिया जाता है और जिस तरह घर जिहड़े आ वो सैकड़ियां की गिनती ढाए नहीं जाते उन्होंने अग भी लाई जाती है और सानू बहुत वड्डी इस गल की तकलीफ है कि पुलिस भी उन्होंने नाल रल जाती है जदों कोई पुलिस की यह जिम्मेवारी नहीं है। पुलिस की जिम्मेवारी है रक्षा करना और रक्षा करने की थां ते जिहड़ा जुल्म करता आदमी उहदे नाल खड़े हो जाते हैं, ज़्यादा वड्डी तकलीफ है। तो मैं पुलिस वाले भी कहना चाहुंदा कि तुहानूं तां संविधान ने रक्षा करने वास्ते पैदा किया है और 1950 तो बाद असी नौकरी लगे हाँ। 1950 तो पहला कोई पढ़िया लिखिया आदमी नहीं सी और जदों असी गल साडे समझ पई है जद असी मानसिक तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं समझिया है ਜਾਂ अपने पुरखियां नूं समझिया है, उन्होंने संघर्ष नूं समझिया है और भारत के संविधान नूं समझिया है, लोकतंत्र नूं समझिया है, तद सानूं लगदा कि साडे नाल जाति हो रही है, साडे नाल बहुत अत्याचार हो रहा है। और तुसीं कहोगे कि मैं जिहड़ा आदमी बोल रहा मेरे नाल की अत्याचार होएगा, मैं तुहानूं इत्थे खड़ा खड़ा 100 अत्याचार गिना सकदा है जिहड़ा मेरे जीवन च वापरिया और जिन्हें मैं बर्दाश्त किया है और ये सारे लोग जिन्ने खड़े हैं ये अत्याचार बर्दाश्त करते करते इत्थों तक आ गया। तो मैं साथियों इन्ना ही सुनेहा देना चाहना कि भारत च अत्याचार नहीं होने चाहिए और जिन्होंने लोगों को आदत पई है अत्याचार करने की उन्होंने भी बेनती है कि वो बंद कर दें। ये बेहतर है, भारत वास्ते भी बेहतर है, इस देश के लोगों वास्ते बेहतर है, इस देश के सिस्टम वास्ते बेहतर है और भारत के संविधान वास्ते भी बेहतर है, लोकतंत्र वास्ते भी बेहतर है कि अपने हत्थ है जिहड़े खून नाल रंगे हुए है इन्हों
ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਔਰ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਉਂਸਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਗਏ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਗੁਰਾਇਆ, ਫਲੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 90% ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣੇ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਗੱਬੇ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਯਾਰ तारा राम मेहना राजस्थान से हूँ और मैं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ बामसेव की एजुकेशनल विंग है उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आज का जो ये आयोजन रोज मार्च का रखा हुआ था प्रोफेसर गुरनाम सिंह जी मुक्तसर साहब द्वारा, आप हमारे मार्गदर्शक मंडल के और बामसेव के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इनके आदेशानुसार जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया उसमें हमें भी बुलाया गया था और हम इस आदेश की पालना करते हुए इस कार्यक्रम में आए हैं, हाजिर हुए हैं। अभी उन्होंने आपके सामने जो भी बातें बताई है, जहाँ तक हमारा मानना है कि ये जो अत्याचार और अन्याय देश में चल रहा है या हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो है जातिवाद। जातिवाद ही इसकी जड़ है और जब तक जातिवाद को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक ये अत्याचार और अन्याय खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों ने पूरे देश में सभी जातियों को एकजुट करने का जो प्रोग्राम चलाया हुआ है उसी के तहत पंजाब में भी आज 26 तारीख को ये प्रोग्राम रखा गया। पूरे देश में हर महीने की 26 तारीख को ऐसे ही अलग अलग राज्यों में हम लोग इसी तरीके के मार्च और प्रोग्राम लगा करके लोगों को जोड़ करके जाति व्यवस्था को ख़त्म करें जो कि इस अत्याचार और अन्याय की जड़ है। इसके लिए हम पहल किए हुए हैं और पूरे देश में लगभग हम 3000 जातियों को आज दिन तक जोड़ चुके हैं। 3000 जातियों के रिप्रेजेंटेटिव हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ चुके हैं और जिस तरीके से अत्याचार करने वाले जो भी लोग हैं वो तो गुनाह कर ही रहे हैं, लेकिन अत्याचार सहना भी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अत्याचार सहना भी अपने आप में एक अपराध है। तो हम हमारे समाज के लोगों को जगा कर कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कोशिश करें कि ये अत्याचार बंद हो जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें प्रतिक्रिया भी करनी होगी। मैं इतनी बात है अगर अपनी बात सुना। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ अभी हर महीने हमारा अगले महीने हरियाणा में होगा, उसके अगले महीने हमारा बिहार में होगा, यूपी में होगा और लास्ट में पूरे साल के प्रोग्रामों का एंड इस बार हम लोग नेशनल कन्वेंशन के रूप में मुंबई में 26 नवंबर जो संविधान दिवस है उस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इसका समापन करेंगे। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਮਨੂਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਮਨੂਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਜਾਤੀਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭੀਮ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ
ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। मैं लड़ रहा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਆਇਓ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਆਇਓ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। 100 ਸਾਲ। और जेडे लोग ये लालच लेके चलते हैं कि भी लोग लहर चली है, लोग उठे है, चलो नाल रल जाओ, चेहरा दिखाओ, MLA MP बनो, वो घट्टो घट मेरे नाल चल के सुपना ना ले। 40 साल तो मैं यही सुपने देखदा, इस उम्र तक आ गया। और ये गल मैं तुहानूं तां कही है कि बड़े MLA बनाए, बड़े MP बनाए, और 100% सारे दे सारे थोड़े टूए ते लत मार के, पिछवाड़े ते लत मार के दुश्मन की घोड़ी ते जा चढ़े। असी आदमी बनाना, MLA नहीं बनाना। असी आदमी पैदा करना है, MP पैदा नहीं करता। और एक भी सूरमा पैदा हो गया तो 100 MP के बराबर होएगा। थोड़े 131 MP बैठे हैं संसद दे विच, कदे बोलते सुनिया? ये गूंगे बोले बहरे लोग पैदा करके की करोगे तुसीं? ये जो लंबा संघर्ष बाबा साहब ने चलाया, उसका नतीजा की निकलिया? ये पूना पैक्ट की पैदावार का नतीजा की निकलिया? और 2 करोड़ लोग मुलाजम लगे आ 60 साल च। 2 करोड़ खरबां रुपए तनख्वाह ली असी 50 40 साल तक, 52 साल तक नौकरी की और अरबां खरबां नरबां रुपए तनख्वाह लिया है। और किन्ने लोग उन्हां चों अपने समाज वास्ते निकले है? किन्ने लोग निकले है? 1922 च थोड़े च कोई पढ़िया लिखिया नहीं। बाबा साहब ने संघर्ष किया और 1942 च 500 आदमी बाबा साहब आप कहते हैं कि ग्रेजुएट बन गए। और नाल ही उन्होंने कहा कि चाहे ग्रेजुएट बन गए आ, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिता। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਖੂਨ, ਇਹ ਮੁੜਕਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਵੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ एक संदेश जिहड़ा पूरे भारत नूं दिता है कि अत्याचार ज्यादा चिर बर्दाश्त करने बहुत औखे है। 3000 साल तो बर्दाश्त कर रहे, कितनी देर तक बर्दाश्त करांगे? मैं ज्यादा ना बोलता होया करी फिर थोड़ा धन्यवाद करदा है। अपने को समा नहीं है, तुसीं जाना भी है और मैं सोचदा कि ये तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जिन्हां लोकां ने संघर्ष करना हुंदा है तो मैं इन्ना कुछ कहता होया थोड़ा फिर धन्यवाद करता होया मैं थोड़े तो रजा लेना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। और मेरे तो बाद ताराराम जी मीणा, राष्ट्रीय प्रधान, मूल निवासी संघ, वो थोड़े नाल 2-3 मिनट वास्ते विचार करनगे। जय भीम। उपस्थित मूल निवासी साथियों, प्रोफेसर साहब ने जो अपील आप लोगों से की है, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, समय का वैसे भी अभाव है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक विनती करना चाहूँगा कि वर्तमान में जो हालात देश के अंदर निर्माण हो रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं,
और जो भी बामसेफ के कैडराइज लोग हैं वो शायद भली भांति इस चीज को देख और समझ रहे हैं और वे प्रयास भी कर रहे हैं। हम लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत के इतिहास में बुद्ध काल के बाद पहली बार ब्राह्मणों के वर्चस्व को खतरे में डालने वाला समाज निर्माण हुआ है। इतना पढ़ा लिखा वर्ग इससे पहले किसी भी क्रांति में नहीं था, चाहे वो संतों की क्रांति हो, चाहे वो उसके बाद की क्रांति हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर तक की क्रांति हो। इतने लोग नहीं थे जितने कि आज इस देश के अंदर पढ़े लिखे और सूझवान और समझदार लोग हैं। अगर हम इतने पढ़े लिखे लोग और सूझवान समझदार होते हुए भी अगर अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं बचा पाए तो शायद मैं समझता हूं कि हमारे लिए ये पूरे इतिहास में इससे बढ़कर कोई काला समय नहीं होगा। इसलिए आप सभी लोगों से विनती है कि जो भी हम लोग पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं उसे आप सिर्फ औपचारिकता में न लें और गंभीरता से लेते हुए अपना सब कुछ वर्चस्व सब कुछ दांव पर लगा करके अपने बच्चों की और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बड़े पैमाने पर जो आज पंजाब में इतिहास रचा है, यही इतिहास हम लोगों ने पहले भी मार्गदर्शन में प्रोफेसर साहब के पूरे देश में आयोजन किया है और इसका समापन 26 नवंबर को मुंबई में होगा। उसके लिए भी हम आमंत्रित करते हैं और हर महीने की 26 तारीख को हर अलग अलग स्टेट में ऐसा ही प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन आज का ऐतिहासिक प्रोग्राम देख करके हमारे भी हौसले थोड़े बुलंद हुए हैं। आप सभी लोगों का इसके लिए आभार, धन्यवाद। तो मेरे साथियों एक मिनट भाई, तुसी जिन्हों ने वापस जाना है बड़े आराम ना जाना है, थोड़ी घरे बहुत जरूरत है। किसी ने कोई गड़बड़ नहीं करनी, घट स्पीड रख के बड़े धम्मन नाल धीरज नाल एक सियाणे बंदे की तरह ਜਿਹੜੇ कमांडर है वो वापस गड्डियां ते मोटरसाइकिल लेके जाणगे, उन्हां दी जिम्मेवारी है। और दूसरा ਜਿਹੜੇ जिन्हां दा सारा रूट मेरे वाला है, मोगा मुक्तसर वाला बठिंडे वाला, वो सारे इक्को लाइन चलणगे और मेरी गड्डी दे नाल चलणगे और मोगे तक वो सारे दे सारे नाल चलणगे। वो अपनी गड्डियां सारियां सेट कर लैण। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।